ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਬੱਲਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ है। हम दिल खोल के खुलासे करेंगे और ऐसे चुकाने वाले खुलासे करेंगे कि आप अपने दांतों थले जुबान दबा लेंगे। तो मैं ये वादा कर सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि वाकई ये आवाज उसी व्यक्ति की है। आज मैंने जो पुराने आईओ थे उनसे भी बात करने की कोशिश की, पूरा जाएगा क्योंकि जो डॉक्टर ने भी गलत रिपोर्ट बनाई है, डॉक्टर छोड़ा नहीं जाएगा। अब डॉक्टर को मतलब चक्कर आ रहे हैं, उसकी नींद हराम है। उन्होंने बताया कि जो हरचंद था ना, कि वो लड़की को इस कदर तक प्यार करता था कि उसके जो पहले बैंड थे ना आइलेट्स के, इंग्लैंड और कनाडा के लिए आ चुके थे कि वो इंग्लैंड भी जा सकता था, कनाडा भी जा सकता था, लेकिन वो अगर उसकी आत्मा को थोड़ा सा भी उससे प्यार था तो आज भी वो सच बोल सकती है। तो उसमें ऐसे ऐसे खुलासे हैं कि हर का दिमाग चकरा जाएगा और ये केस शीशे की तरह साफ हो जाएगा लोग देखने वालों को। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ धारा 217 धारा 218 का प्रबंध है कानून में, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग ड्यूटीज ऑफ लॉ, और दे ऐसी वो धाराएं होंगी जो कि रेड विद 302 होंगी और वो उनको भी कत्ल की बराबर सजा मिलेगी। 100% कन्फर्म है, पहला कुटिया गया, तसीहे दिते गए ने, बुरी तरह मारिया गया और ਜਦੋਂ ਅਧਮੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। यूपी ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੌਇਸ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਬੱਲਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਬੱਲਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਬੱਲਨ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਆਲ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਬੱਲਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? इस तरह है कि कुछ लोग इस गलत फहमी च हुंदे ने कि शायद आप रिश्वत दे देंगे तो केस ठंडा पै जाएगा या मुक जाएगा या दूजी पार्टी के खिलाफ हो जाएगा।
पर शायद उन्होंने ये नहीं पता भी जिथे सुनील मल्लन मगर पै जाता है, जो 20 रुपए पिछे 13 साल की लड़ाई लड़ सकता है, तो वो इत्थे ते बंदे की जान गई है। सो बड़ी वड्डी बेवकूफी हुंदी है उन्हां बंदियां दी कि 2-4 बंदे जिहड़े महकमिਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੌੜੇਗਾ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਮਟਾਉਣਗੇ। नो डाउट ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਕੇਸ 'ਚ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੈਸ, ਮਿਕਸ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਬਟ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਬਰ ਜਾਣੀ ਹੈ वो हिंदी बोलने वाले ज्यादा ने, और उतने लोकलाइज की रिक्वेस्ट है बार बार कि सर प्रोग्राम हिंदी में किया करो। तो मैं ये सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे वेल विशर हैं और जो हमें गालियां भी लिखते हैं कमेंट्स में, धन्यवाद उनका कि आप जलते हो, हमें उसकी रिसीव देते हो, इसीलिए गालियां लिखते हो, धन्यवाद है आपका। ਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਲੱਖ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1% ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि थैंक यू उसका भी, कि आप जलते हो और हमें खुशी मिलती है, तभी आप ऐसा गंद लिखते हो। और वैसे भी आपके माँ बाप ने आपको वही परवरिश दी है, तो आप वही काम करोगे, आपकी औकात ही उतनी है, तो आपको छोड़ते हैं, अच्छे लोगों से अच्छी बातें करते हैं। सो जब चिट्ठी गई है, प्लस सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल हो रही हैं, और इस हरचरण मर्डर केस में अब सिट फॉर्म कर दी गई है। सिट होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मतलब होता है कि एक ऐसी टीम 3 से 5 मेंबर की, 7 मेंबर की, 10 मेंबर की, हेडेड बाय सीनियर आईपीएस ऑफिसर, वो उसकी तफ्तीश करते हैं और उसमें से जितने भी तथ्य हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, और उन तथ्यों को सामने रखते हुए अगर कोई भी बंदा गलत मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये एक गुड न्यूज मैं आपको दे देता हूँ, एसएसपी साहब ने, वहां के जो एसएसपी साहब है, उन्होंने सिट फॉर्म कर दी है, और वो सिट जो है अब इन्वेस्टिगेशन करेगी। पहले जैसे सिर्फ वो माधोपुर या जो भी उस जगह का नाम था उनके पास थी वो इंक्वायरी, टांडा उसके बाद हाँ जी, माधो टांडा था शायद उसका नाम। माधो टांडा, फिर वो क्राइम ब्रांच के पास चली गई है, और अब हमारी चिट्ठी के बाद ये सिट बन गई है। और अब कम से कम कातिलों को डर जरूर लगेगा, कातिलों को डर जरूर लगेगा, और जो भी कातिल होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये हमने दोनों घरों में जाके यही वादा किया था कि हम तो सच्चाई को पहरा देंगे, और अगर किसी ने गलती नहीं की तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, पर की है तो छोड़ा भी नहीं जाएगा। सो सिट बनने के बाद हमें रिलीफ मिला है। मतलब ऐसे ऐसे वीडियोज भी सामने आते हैं, ऑडियो सामने आए हैं कि 5,000 रुपए में कत्ल हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो कत्ल जो है ना, वो गोली मार के किए जाते हैं, ना कि डंडे से पिटाई करके, मुंह पे लाशों के निशान, हाथ पे खून, मुंह में से खून, नाक में से खून, पैरों में खून। वो रॉड देखो, जिस रॉड को गर्दन तोड़ दी, चेस्ट के नीचे कट के निशान, पेट पे जूते मारने के निशान, ध्यान से देखना, पेट पे थप्पा लगा हुआ है जूते मारने का, बूट पहन के जैसे किसी ने पीटा हो, सख्त बूट पहन के, और लकड़ी के डंडे से पीटा गया है, लोहे की रॉड से पीटा गया है।
तो ये सारी बातें हैं। अब ये क्यों पीटा गया, किसने पीटा, क्यों पर्चा, मतलब क्यों ऐसा किया, क्यों मर्डर किया, मैं यहाँ एक पुष्टि और अपने दोस्तों को कर देता हूँ, पिछले प्रोग्राम में कर चुका हूँ। अगर ये 302 नहीं है ना, तो 304 तो ये अवश्य है। तो 304 का मतलब इंटेंशनल, ऐसी गलती इंटेंशनल नहीं करना जिससे किसी की मौत हो जाए, उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो बिजली का करंट छोड़ा और ऐसी जगह पे लाश मिली जो उसका रूट भी नहीं है, हाँ जी। जो उसके घर को जाने का रूट भी नहीं है, उससे थोड़ी सी परे है, उस जगह पे जाने का उस बच्चे का कोई काम नहीं था। तो ये हाँ सारी बातें हैं जो सामने आ जाएंगी आने वाले प्रोग्रामों में। हमारे पास मटेरियल तो बहुत ज्यादा है, बट जितना पब्लिक डोमेन में आना चाहिए उतना ही हम दिखा रहे हैं। अभी मुझे आज सर कहीं ना कहीं कुछ दोस्तों की शिकायत है कि आपने जो वहां पे वीडियोस रिकॉर्ड की है वो हमें साथ ही साथ क्यों नहीं दिखा रहे, उस पे भी जरूर उनको जानकारी दे दो जी, क्यों नहीं अभी तक आ रही वीडियो। देखो दोस्तों, वो शिकायत आपकी आपकी इमोशंस के हिसाब से तो जायज है, पर कानून के पक्ष के मुताबिक जो मैं ठीक समझूंगा वो सारा कुछ हमारे पास है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो हम दे चुके हैं, पर जैसे जैसे जिसका समय आएगा वो आपको दे दी जाएगी, उसके लिए ना चिंता करें। कई बार समय से पहले भी अगर कोई सूचना दे दी जाए तो वो गलत हो जाती है, डिफेंस उसकी कुछ तैयारी कर लेता है, कहीं ना कहीं क्रिमिनल बच सकते हैं, या वो बचने की तैयारी कर सकते हैं, वो या उसका जवाब सोच लेंगे। तो आप चिंता ना करें, जब समय आएगा दिल खोल के खुलासे करेंगे, और आपके लिए वीडियोस। ऐसे ऐसे चुकाने वाले खुलासे करेंगे कि आप अपने दांतों तले जुबान दबा लेंगे। और वो सारी वीडियोस आपके लिए ही हैं, पब्लिक डोमेन के लिए ही हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही हैं, और वो पब्लिक को दिए जाएंगे। चिंता ना करें, ये मेरा आपसे वादा है। और वो आप सबके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है वो वीडियो। मैंने तो जो सोचना था वो सोच लिया, देखना था जो देख लिया। और मैं दोस्तों को बता दूं कि मैं बहुत जल्द फिर अपनी टीम के साथ, कुलविंदर सर के साथ, इनके साथ सफर करने में अच्छा लगता है, मजा आता है। तो 12 घंटे का सफर कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। तो काम करते हुए आते जाते आ जाएंगे। और जल्द ही मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ, आपको सूचित हो जाएगा। मुझे बड़े परिवारों के फोन आए हैं। मुझे यहाँ तक दलजीत भाई साहब हैं, उनका पूरनपुर से 20 किलोमीटर आगे घर है, फार्म हाउस है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मल्लन साहब इस बार आप जब भी जाएं, वैसे तो मैं आपको अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा, नहीं तो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो मेरे घर में, वहां मेरे फार्म हाउस में ठहरेंगे। तो दलजीत भाई साहब की थैंक यू। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे कई सारे आश्वासन दिए गए हैं। उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आप इतना कंसर्न रखते हो मेरे साथ, कुलविंदर जी के साथ, और एज ए टीम हमने काम किया है। अगर शायद कुलविंदर जी उस दिन थोड़ा सा हिम्मत ना दिखाते तो मैं भी ना जाता, ईमानदारी वाली बात बता रहा हूँ। क्योंकि अनजान शहर, मुझे पहचानने जानने वाला कोई नहीं, तो इतनी दूर जाना, इतना लंबा 12 घंटे 14 घंटे का सफर करना, और वो भी अकेले, तो साथ बना 4 लोग हम गए। मजा, मतलब मजे मजे धीरे धीरे जाते रहे, और सफर तय हो गया, 40-50 घंटे का सफर। नहीं चला इतना ज्यादा परेशानी हाँ नहीं। जी, मौसम कोई भी परेशानी नहीं। फिर भी परेशानी नहीं हुई। मौसम बहुत ही गंदा था। रात को जब हम सफर कर रहे थे सड़क भी नहीं दिख रही थी, बरसात इतनी तेज थी, फिर भी बाइक हमें प्रॉब्लम। गाड़ी के। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, आप सबके लिए ही वो वीडियो या वो ऑडियो या वो हमारे पास जो भी कंटेंट है। पर एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, वो कंटेंट 100% ओरिजिनल है। उसमें से कुछ बातें काटी गई हैं पर एडिट नहीं की गई, बदलाव करके नहीं सुनाई जा रही। उसमें से कुछ बातें हमने काट ली हैं जो अभी दिखाने लायक, सुनाने लायक नहीं है, उस डोमेन से बाहर है। तो जो कोई भी आपको बताता है, देखो मैं तो जैसे फिजिकली मिला हूं पूरे परिवार से, तो कहीं ना कहीं मैं अब परिवार का नाम जानता हूं, आवाज पहचानता हूं। तो मैं ये वादा कर सकता हूं, गारंटी ले सकता हूं कि वाकई ये आवाज उसी व्यक्ति की है। मैंने किसी को स्क्रिप्ट देके पर्दे के पीछे बिठा के वॉइस रिकॉर्ड नहीं करी। और आप वरी ना करें, हम आपका कंसर्न समझते हैं, उसका उसकी कदर करते हैं, उसके लिए हम आपको वादा करते हैं, समय आने पे
हर खबर आप तक सही पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो कुलविंदर जी उस काम में माहिर हैं। मैं तो अपना लीगल ओपिनियन देता हूं और लीगल एंगल से उसको देखता हूं, ताकि आपके दिल को कहीं ठेस ना पहुंचे कि हमने पहले गलत खबर दिखाई, अब और कुछ बोल रहे हैं। मैं जो भी बोलता हूँ एक ही बात बोलता हूँ, हाँ गलती कर देता हूँ, इंसान हूँ, बट गुस्ताखी नहीं होती। उस गलती को आज आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी, पर कभी पड़ेगी तो मान लूंगा कि ये गलती हुई थी, इसको चेंज कर दिया। और कोई बात कुलविंदर सर? सर यहाँ पे मैं भी क्लियर करना चाहूंगा एक बात उन दर्शकों को जो कि अपडेट्स के लिए बहुत वेट करते हैं, कि हम जो खबर देंगे, जो इस केस से जुड़े हुए अहम गवाह हैं, जो इस केस से जुड़े हुए अहम करेक्टर हैं, वो खुद हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपके सामने सच लेके आए। जो दूसरे कुछ फेक न्यूज कर रहे हैं, वो कभी किसी को कॉल करके, कभी किसी को, कोई जन ऑथोराइज शख्स भी नहीं होता, उसी बात आपको खबर दिखा देते हैं जो कि फेक होती है। यहाँ पे एक बात ऐड करनी चाहेंगे कि अगर आपको कोई न्यूज दिखाई देती है, जैसे एक न्यूज फेक न्यूज वायरल हुई थी कि किसी मजदूर ने कत्ल होते हुए देखा। एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपको अनलिमिटेड ज्ञान और सुनील मल्लन एडवोकेट यूट्यूब चैनल पे ये न्यूज नहीं दिखाई दी, बल्कि तो आप समझ सकते हो कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक उदाहरण है सर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े आज की बातचीत, लोगों के सवालों के जवाब भी दें, एक बात यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑडियंस के लिए जानी चाहेंगे कि जो सिट होती है उसमें किस लेवल के अधिकारी होते हैं, ताकि स्रोतों को इसके बारे में भी जानकारी हो सके, किस लेवल के, किस पद के अधिकारी होंगे इसमें। देखो, जो मिनिमम लेवल होगा वो एक इंस्पेक्टर होगा, फिर उसके बाद सर्कल ऑफिसर, और उनके ऊपर एक एसपी या एसएसपी, तो उच्च अधिकारी होते हैं। और तीनों लोग अपनी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यही नहीं कि जो एक ने कर दी वही दूसरे ने कर दी, वही तीसरे ने कर दी। तो तीनों एक तरह से अलग अलग अपनी जांच करते हैं। जिसको जहां डाउट आता है उसकी वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि टेलीफोन उनके ट्रेस कराए जाएं या फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं, डेफिनेटली ये वाली बातें हम पहुंचा भी चुके हैं और आगे भी पहुंचाएंगे। या उनका अपना ही दिमाग है कि आफ्टर आजकल सबसे पहला हथियार ही टेलीफोन है, वहां से आदमी के 99% चिट्ठे खुल जाते हैं कि वो क्या कर रहा था, कहाँ कर रहा था, कैसे कर रहा था। तो वो सारी चीजें, या उसके बाद और भी जो चीजें हमें लगती हैं, हम उनको जल्द ही लाएंगे। मतलब क्योंकि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन में, बट बीइंग कंप्लेनेंट हम अपना पक्ष रख सकते हैं, और हम समय समय रखते रहेंगे। आज मैंने जो पुराने आईओ थे उनसे भी बात करने की कोशिश की, और अनफॉर्चुनेटली मेरी उनसे बात हो नहीं सकी। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, शायद वो साहब बिजी रहे होंगे, तो उन्होंने फोन उठाया नहीं मेरा। तो बहुत जल्दी उनसे भी मैं राब्ता कायम करूंगा, और देखते हो हैं क्या सकता बनता है। है बात करने का मौका मिला तो। बिल्कुल, उनको उनसे परमिशन लेके वॉइस रिकॉर्ड करके, अगर वो रिकॉर्डिंग की परमिशन देंगे तो हम वॉइस रिकॉर्ड करके पब्लिक तक लाने वाली होगी तो जरूर लाएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं है, हम ये कोई हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये हाँ जी। पब्लिक की प्रॉपर्टी है या सरकार की प्रॉपर्टी है, ये केस प्रॉपर्टी है। तो जिसकी जो चीज की जरूरत होगी वो डेफिनेटली हम उस डोमेन में देंगे ही देंगे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर वो नहीं देने लायक होगी, उसके लिए आप हमें गन पॉइंट पे भी रख लो, हम नहीं देंगे। जो चीज किसी भी मर्यादा को भंग कर सके। देखो, हमने जब लड़की को भी मिलना था तो परिवार को रिक्वेस्ट की थी हाँ कि जी। बच्चे के बारे में गंदी अफवाहें, गंदी बातें लोग कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चे का मुंह ढकाया जाए, उसकी बॉडी को ढका जाए। एक बात यहाँ पे बोलनी चाहूंगा, अगर आप उनको ना बोलते, हो सकता परिवार उसका मुंह कवर करने के बिना ही सामने ले आता कैमरे के। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जब तक कोर्ट ने उसको दोषी नहीं कहा, मैं उस बच्ची को बदनाम नहीं करना चाहता। वो भी आखिर हमारी ही बच्ची है, किसी और की नहीं है। पर अगर उसने कोई पाप किया है तो उसको पनिशमेंट तो मिल जाएगी। उसके लिए एक लीगल रास्ता है, और अगर वो दोषी होगी तो डेफिनेटली आएगी कटहरे में। और नहीं, अगर मान लो वो किसी कारण से साबित ना हुई, और जो सोशल मीडिया पे जिन गंदे लोगों ने उसके बारे में गंद फैलाया है, उनको तो फिर पनिशमेंट मैं ही दिलाऊंगा ना। फिर उनको बताऊंगा कि आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन कैसे करते हैं। सो चलिए, वो बात की बातें हैं। सर एक क्वेश्चन ले ले पहले। जी जी, जरूर ले लें जी।
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ का क्वेश्चन है वकील साहब जी एक गल होर है जो हैरानीजनक है ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ फिर भी अहम सवाल है इसका जवाब जानना चाहते हैं। कोई जेलसी, कोई, मैंने कहा था ना कत्ल की दो ही बातें कभी चेक करनी है। लास्ट सीन वो क्लियर है, लड़की के घर के आसपास बुलाने के सबूत भी अवेलेबल है, मारा किसने है उसके लिए मोटिव, कारण क्या रहा होगा मारने का, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। ये दो चीजें प्रूव करनी होती हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा और बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर ने भी गलत रिपोर्ट बनाई है, डॉक्टर छोड़ा नहीं जाएगा। अब डॉक्टर को मतलब चक्कर आ रहे हैं, उसकी नींद हराम है, ये वादा है मेरा, क्योंकि मेरा लव लेटर मिल चुका है उनको, मेरी चिट्ठी मिल चुकी है, डिलीवर हो चुकी है, तो उनको जवाब बनाना पड़ेगा कि इतने बड़े निशान तुझे कैसे नहीं दिखे, कौन सी चीज ने तेरी आंखों पे पट्टी बांधी है, वो जवाब दे। मैं डॉक्टर से भी बात करूंगा, शनिवार आप शायद मेरे पास आ रहे हो तो सैटरडे को हम करेंगे अगर हो सका। और जो पुराने क्राइम के जो इंचार्ज थे जिनके पास केस था, मिस्टर शहरोज अनवर, वो थे आईओ जिनके पास था, उनसे मेरी आज बात नहीं हो पाई है, तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। परिवार से संपर्क लगातार है। जी साहब। सर इसी फील्ड से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं कि इसी जो जहां पे घटना हुई है वहां के इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक शख्स ने कुछ खुलासे किए हैं अपना नाम ना बताने की शर्त पे। उनका कहना है कि पहले इस जो अपराध हुआ है उसको छुपाने के लिए पुलिस ने पैसे लिए, फिर जब सामने आया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा, जब केस हाईलाइट हो गया तो उसको छुपाने के लिए फिर पुलिस ने उस पे दबाव डाला। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, उनका कहना था कि ऐसे भी हो सकता है कि आगे से आगे उलझते जा रहे हैं खुद ही वो अपने जाल में। साहब इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इसी तरह जो बेईमानी चोरी ठगी हुई होती है ना, वो छुपाए नहीं छुपती। देखो हमारा भी दिमाग है, मेरी एक पेज की आपको दिखाई थी मैंने, एक पेज की ऑब्जेक्शन लेटर, ये मैं अपना एक मिनट वर्चुअल मोड ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट बस होल्ड कर लीजिए। ये लो, ये ईमेल गई है मेरी, ये पढ़ के सुना देता हूँ किस किस को गई है। सीएम यूपी, सीएमओ पीलीभीत, एसपी एसएसपी यानी कि पीलीभीत, फिर डायरेक्टर विजिलेंस डीसी पीलीभीत, और इसके अलावा सेशन जज साहब को और उनको। ये रही वो चिट्ठी, ज्यादा मैं जल्द नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये सारी अगर बातें आ गई सामने, कहाँ कौन कौन बचाएगा उनको? मेरी इस चिट्ठी का जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ जी, मैं अधिकारी हूं इस चिट्ठी का जवाब लेने के लिए, और ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट में भी गई है, सेशन जज साहब के पास भी गई है, और खुफिया एजेंसियों को भी भेजी है मैंने। कहाँ कहाँ बचेंगे ये लोग? सीआईडी, सीबीआई, सबको कॉपियां भेजी हैं, कहाँ कहाँ बचेंगे ये लोग? सर जैसे गुरबख्श सिंह जी ने क्वेश्चन किया था कि लड़का विदेश जाने वाला था, ऐसे ही लड़के के करीबी दोस्त ने आज हमसे बात की है, उन्होंने एक ऐसा खुलासा कर दिया जो कि इस केस में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। वैसे तो वो पूरी रिकॉर्डिंग भी स्रोतों के दर्शकों के ऑडियंस के सामने आ जाएगी। उन्होंने बताया कि जो हरचंद था ना, कि वो लड़की को इस कदर तक प्यार करता था कि उसके जो पहले बैंड थे ना आइलेट्स के, इंग्लैंड और कनाडा के लिए आ चुके थे कि वो इंग्लैंड भी जा सकता था, कनाडा भी जा सकता था, लेकिन वो फिर भी तैयारी कर रहा था क्योंकि वो अपने दोस्तों को बोलता था कि जो मनप्रीत है उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके पिता अमेरिका में है, आने वाले समय में उन्होंने अपनी पीआर भी अप्लाई कर दिया है अमेरिका में कि वो पीआर हो जाएंगे, फिर मनप्रीत को भी वहीं पे बुला लेंगे, इसलिए वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। ये भी उन्होंने बताया क्योंकि वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता था मनप्रीत के साथ। जी बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ उस लड़के ने कुछ ऐसे भी सच बताया कि अगर लड़की चाहती
तो लड़का बच सकता था। उसके अपना पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उन्होंने बताया है कि लड़की लड़के को बचा सकती थी अगर वो उससे प्यार करती होती तो। सर बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, वो उसके ऊपर भी लेट जाती कि मैं इसको टच नहीं करने दूंगी, घर वाले क्या कर लेते। आज भी अगर कोई ऐसी हरकत हुई है तो आज भी वो सच बोल दे हाँ, पब्लिक के सामने या पुलिस के सामने, तो भी सच खुलासा हो सकता है। आ ही जाएगा। थोड़ा दिन अगर अगर लगेगा उसकी स्टार्टिंग अगर में तो। उसकी आत्मा अगर उसकी आत्मा को थोड़ा सा भी उससे प्यार था तो आज भी वो सच बोल सकती है, आज भी वो सरकारी गवाह बन सकती है, उसे बचाया जा सकता है। आज भी अगर उसकी आत्मा कहीं भी उसको ये मजबूर कर दे, अगर वो उसके दिल में थोड़ा सा भी कण था, मैं कहता हूँ आज भी अगर वो कण है, 1% भी भगवान को साक्षी रख के, तो शी कैन बी, उसको वो मौका मिल जाना चाहिए और वो कह दे तो बेटर होगा। सर जैसे मैंने आपको भी परमिशन के लिए वो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए बताया था, ऑडियंस के सामने भी रखेंगे अगर आप उसको पास आउट करते हो। वो तकरीबन एक बार हाँ, 1 घंटे के करीब कॉल रिकॉर्डिंग है और उसमें ऐसे ऐसे खुलासे हैं कि हर का दिमाग चकरा जाएगा और ये केस शीशे की तरह साफ हो जाएगा लोग देखने वालों को। क्योंकि उस लड़के ने बोला है कि जिस पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन में पहले पड़ाव की इन्वेस्टिगेशन में बोला है कि कुछ नहीं मिला, उसी पुलिस ने जब वो लड़की बार बार कॉल कर रही थी दूसरे दिन सुबह, उन्होंने बोला था कि लड़की सिर्फ आपसे जानना चाहती है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। वो जिनके दोषी ठहरा रहे थे पुलिस वाले भी लड़की को। पता है मुझे बहुत सारी बातें हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा दबा के रखते हैं और जो 1 घंटे की हमारे पास ऑडियो है या उससे ज्यादा है, में उस कोशिश करेंगे 2-3 पार्ट में, क्योंकि 3 एक या 4 पार्ट में जितना जरूरी है उतना अभी दिखाएंगे, बाकी थोड़ी थोड़ी गैप डाल के दिखाएंगे। टाइम आने पे पूरी रिलीज करेंगे, ऐसी बात नहीं, पब्लिक की प्रॉपर्टी है। वादा कर देते हैं कि कुछ काटेंगे नहीं, 3 पार्ट में दिखा देंगे, चेक कर करके दिखाएंगे पूरा। दिखाएंगे पूरा और जितना आपके डोमेन में आने वाला है उतना ही दिखाएंगे। हाँ, एडिट कुछ नहीं करेंगे, जितना पोर्शन आप तक आना चाहिए उतना हम आपको सुना देंगे, ये हमारा वादा है। हाँ, वो इस केस के अहम पार्ट होंगे, ये भी श्रोतों को, ऑडियंस को हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। सर एक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜੀ प्लीज। जी सर बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स आपके लिए, इवन आपकी फैमिली के लिए, मतलब एक विश्वास जो एक लास्ट लेवल का विश्वास होता है ना, वो विश्वास लोगों का देख के कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं पढ़ के कि एक इतना होर मतलब एक होर ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਵੀਰ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਗਾਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮਿਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮਿਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ 2 ਮੁੰਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ चलो वो भी राज कुछ खुलनगे। मल्लन साहब का स्टेप जो होता है ना, पक्का होता है, थोड़ी देर लगती है, पक्का काम करते हैं हम लोग और करके दिखाएंगे। ते ओनू मैं फांसी की तख्ते तक पहुंचाऊंगा, वो कातल है, कातल फड़िया जाएगा। 10 दिन 15 दिन का टाइम दे दो, फड़िया जाएगा। मर्डर है और तसीह देने तो बाद
ਕੁੱਟਮਾਰ ਔਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਰਡਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ओरिजिनल कंटेंट के लिए तो हम ही हैं, बाकी हमें कोई कॉपी करे तो हमें उस पर भी इतराज है। बचो मेरे से, मैं खूंखार वकील हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 1% ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਰੱਖਾਂਗੇ। इसी तरह इस केस में भी पुलिस और डॉक्टर के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो पर्चा दर्ज भी करा देंगे। लोग फोन करके रोते हैं मेरे साथ, ये बहुत धक्का हुआ है उनका, उनकी मदद मत छोड़ना।